Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your science classes. So, students, in our last class, we have learned about separation of mixture. So, we have also learned that why it is necessary to separate a mixture, and also we have learned about different techniques, different methods of separation. Then we have learned about solubility and saturated solutions. So I hope you all have revised that chapter, and now in today's class we are going to start with the new chapter, that is getting to know plants. So आज की इस क्लास में हम लोग हमारे प्लांट्स के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं एंड उन सारी चीजों को पढ़कर हम हमारे प्लांट्स के बारे में बहुत कुछ सीख जाएंगे. So let's see the spotlight of this chapter. So after the completion of the chapter आप सब लोग इन पॉइंट्स को समझ चुके होंगे. So the first point is learn about the diversity of plants in terms of their shapes and size. So बच्चों, हमको हमारे आसपास बहुत सारे plants देखने को मिलते हैं and ये सारे plants एक दूसरे से काफी ज्यादा different होते हैं whether in terms of shapes and sizes. So हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि हमको क्या क्या diversity, क्या क्या differences देखने को मिलते हैं plants के अंदर shape and sizes के बेस पे. Then explain how plants stay rooted in one place and produce food through photosynthesis. So उसके बाद हम लोग ये चीज पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से with the help of roots plants जो है वो एक ही जगह पर रहते हैं and also they can produce their own food with the help of photosynthesis. Now classify the plants into herbs, shrubs and trees based on their stem characteristics. So बच्चों, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम हमारे प्लांट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई करने वाले हैं. एंड व्हाट आर दोज कैटेगरीज? वी हैव हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, और ये सारी क्लासिफिकेशन हम लोग हमारे प्लांट्स के स्टेम्स के बेसिस पे करेंगे. So find out the different types of plants that require support to grow, such as climbers and creepers. So बच्चों, आप लोगों ने अपनी previous classes में climbers and creepers के बारे में जरूर पढ़ा होगा. So हम लोग इनके बारे में भी कुछ कुछ चीजें पढ़ेंगे कि कैसे ये लोग support की help से ही grow कर पाते हैं. Explain how stems transport water and nutrients throughout the plant. So बच्चों, नेक्स्ट हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से स्टेम्स जो है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करवा रही होती है एंड ऑल्सो हमारे पूरे प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है वो कैसे सर्कुलेट हो रहे होते हैं. Then learn about the importance of flowers in attracting insects for plant reproduction. So बच्चों, हम सब लोगों को प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, राइट? एंड क्या आप सबको पता है कि ये फ्लावर्स जो है वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं ताकि रिप्रोडक्शन हो पाए. So now, identify special features of plants that help them survive, such as fleshy roots and modified stem. So बच्चों, अब हमारे पास कुछ कुछ स्पेशल फीचर्स भी होते हैं हमारे प्लांट्स के अंदर, और ये स्पेशल फीचर्स हमारे प्लांट्स को सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं. एंड व्हाट आर दो स्पेशल फीचर्स? सम मस्ट बी हैविंग फ्लेशी रूट्स, किसी के पास मॉडिफाइड स्टेम्स भी होती है. Now describe the seed germination process and its role in continuing the plant life cycle. And at the last हम लोग सीखने वाले हैं seed germination process को and हम लोग plant की life cycle को भी सीखेंगे. So now here we have boot up. So plants are important for our environment. हम सब ने ये पढ़ा है कि plants हम लोगों के environment के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. So they make up the primary layer of ecosystem and provide food for all living beings. So अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि plants जो है वो हमारे ecosystem की सबसे primary layer पर होते हैं, सबसे top layer पर होते हैं, and besides that plants जो है वो हम सबको food भी provide करवाते हैं. So life would not exist without plants. Example of plants include trees, herbs, shrubs, bushes, grasses, vines, ferns, mosses and green algae. So बच्चों, अब plants के बिना हम लोगों की life बिल्कुल भी possible नहीं है and हमारे पास different types के plants होते हैं. We have herbs, shrubs, mosses, grasses, ferns, algae and so on. So now look at the picture and label the different parts pointed out. So now बच्चों, अब यहाँ पर हमको क्या बोला गया है, हमको इस पिक्चर को अच्छे से देखना है एंड देन हमको प्लांट के जो ये पार्ट्स पॉइंट आउट कर रखे हैं हमको इन सबको लेबल भी करना है. सो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंटर जो है वो लीफ की तरफ है. सो हियर वी आर गोइंग टू राइट लीफ.
देन नेक्स्ट आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास ये नेक्स्ट पॉइंटर जो है वो कहाँ पर है, ये हमारे को ब्रांचेस शो करवा रहा है. सो वी आर गोइंग टू राइट ब्रांच. देन नेक्स्ट वी हैव दिस पॉइंटर फॉर स्टेम. एंड इनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, ट्रंक. Then next we have over here, यहाँ पर हमारे पास क्या है, we have roots. And then here we can see that they are pointing towards flowers and fruits. So आप लोग यहाँ पर flowers and fruits लिखोगे. Then students, what type of plant is shown in the image? So यहाँ पर हमको किस तरीके का plant show किया गया था, tree, flower, fern और grass. So it is a tree. So can you give two more examples of such plants? So इस तरीके के क्या कुछ और examples हो सकते हैं? So ये हमारे पास apple tree है. So similarly हम लोगों के पास mango tree हो सकता है. हमारे पास लीची ट्री हो सकता है. हमारे पास कोकोनट ट्रीज हो सकते हैं. सो यू कैन राइट एनी टू एग्जाम्पल्स. नाउ व्हाई डू यू थिंक प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ? सो बच्चों हम सब ने ये पढ़ा हुआ है कि प्लांट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए. सो बट ऐसा क्यों है, प्लांट्स क्यों इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्लांट्स हम लोगों को फूड प्रोवाइड करते हैं एंड बिसाइड्स दैट प्लांट हम लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं. एंड जितनी भी हार्मफुल गैसेज है हमारे आसपास, प्लांट्स उन सारी गैसेस को एब्सॉर्ब भी करते हैं. सो यू ऑल आर गोइंग टू मेंशन दीज points over here. Now let's start with our chapter and we are going to start with plant diversity. So plant come in many shapes and sizes with different types of leaves and flowers in various color and size. So बच्चों plant जो है वो हमारे पास different shapes के होते हैं, sizes के होते हैं, उनके different colors होते हैं and also हमको different type of leaves देखने को मिल सकते हैं, flowers के different colors देखने को मिल सकते हैं. तो हमारे आसपास बहुत सारी variety होती है plants की. Scientists estimate that there are around 20 So scientists estimates that there are around 2,50,000 types of plants in the world. So scientists के according हमारे पास 2,50,000 types of plants हमारे पास present है. So plants remain rooted in the soil through their roots. अब बच्चों यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि plants हमेशा एक ही जगह पर fixed क्यों रहते हैं? क्योंकि plants के पास होती है roots और ये roots जाकर soil के अंदर बिल्कुल अपने आप को fix कर लेती है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा प्लांट जो है वो एक ही जगह पर स्टिक रहता है. सो दे मेक देयर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. एंड नाउ वी ऑल आल्सो नो दैट कि प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं एंड जिस प्रोसेस से वो अपना खाना खुद बनाते हैं दैट इज फोटोसिंथेसिस. सो सम प्लांट्स हैव फ्लावर्स दैट टर्न इनटू फ्रूट्स एंड सीड्स. अब होता क्या है, कुछ प्लांट्स के पास फ्लावर्स होते हैं और यही फ्लावर्स है जो कि कन्वर्ट होते हैं फ्रूट के अंदर एंड फ्रूट के अंदर से हमको क्या मिलते हैं, सीड्स. So non-flowering plants like ferns and mosses reproduce through spores or other methods instead of flowers. So बच्चों जिन plants के पास flowers होते हैं वो तो reproduction flowers की help से ही करते हैं, but हमारे पास कुछ non-flowering plants भी होते हैं जैसे कि ferns and mosses and इनके पास flower नहीं होते. तो क्या ये लोग reproduction नहीं करते? करते हैं, बिल्कुल करते हैं, but इनके पास दूसरे फीचर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्पोर्स, जिसकी हेल्प से ये लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं. नाउ we are going to learn about herbs, shrubs and trees. So we can classify plants based on the thickness of their stems and the place of origin of their branches into three broad categories. So अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग plants को classify करने जा रहे हैं and किस basis पे we are going to classify it. हम लोग उनकी thickness of stems के ऊपर उनको classify करेंगे and place of origin of their branches. So उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है herbs and herbs are small plants with soft and green stems. So herbs की characteristic क्या है कि herbs जो है उनके पास बहुत ज़्यादा soft और green stems होती है. So they usually have a short lifespan and complete their life cycle in 1 year. So बच्चों अब ये herbs एक तो छोटे होते हैं, ऊपर से इनकी stems जो है वो बहुत ज़्यादा soft होती है and green होती है, जिसकी वजह से इतने ज़्यादा strong नहीं होते and इनकी life cycle जो है वो 1 साल में complete भी हो जाती है. Example of herbs क्या है हमारे पास, mint, basil, coriander, spinach.
So they are commonly used in cooking, medicine and fragrance. So now बच्चों, आप लोग इन एग्जाम्पल से एक चीज जरूर गेस कर सकते हो कि ये सारे के सारे जो प्लांट्स है वो कहीं ना कहीं हमारे घरों में होते हैं एंड इनको हम बेसिकली मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम लोग इनको मेडिसिन के लिए यूज कर सकते हैं, कुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, फ्रेग्रेंस के लिए यूज कर सकते हैं. सो वी हैव मिंट, दैट इज पुदीना, वी हैव कोरिएंडर, दैट इज धनिया, वी हैव स्पिनच, दैट इज अगेन पालक. सो इन सारी चीजों को हम लोग कुकिंग के लिए यूज कर रहे हैं. देन वी हैव बेसल लीव्स एंड दिस बेसल लीव्स वी कैन यूज इन मेडिसिनल पर्पस. सो हमारे जो हर्ब्स है वो बेसिकली हम लोग कुकिंग, मेडिसिन या फ्रेग्रेंस के लिए यूज करते हैं. Now, next we have shrubs. So shrubs कैसे होते हैं? Shrubs medium sized plants है and shrubs के पास कैसी stems होती है? Woody stems. So now what is the difference between herbs and shrubs? Herbs small plants थे, उनकी बहुत ज़्यादा soft और green stems थी, but shrubs जो है वो medium sized plants होते हैं and इनके पास woody stems होती है. So they are bigger than herbs but smaller than trees. अब shrubs जो है वो tall तो होते हैं, but वो किससे tall होते हैं? Herbs से tall होते हैं और trees से छोटे ही होते हैं. Shrubs can live for several years and often have multiple stems. अब हम लोगों ने देखा था कि हर्ब्स की लाइफ साइकिल एक साल में कंप्लीट हो जाती है, बट श्रब्स कुछ सालों तक जी सकते हैं एंड ऑल्सो इनके पास बहुत सारी स्टेम्स भी होती है. So examples of shrubs include roses, lavender, jasmine and hibiscus. So अब हमारे पास example क्या है shrubs के? Rose, lavender, jasmine and hibiscus, and they are used for landscaping, hedges and ornamental purposes in garden. और हम लोग इन सारे shrubs को mainly किस चीज के लिए यूज करते हैं? Landscaping के लिए, ornaments बनाने के लिए. So here we have rose plant, here we have jasmine plant. Now students, next we are going to talk about the trees. So trees are large plants with single woody stem called a trunk. So अब trees कैसे plants है? Trees बहुत large plants होते हैं and इनके पास एक ही single woody stem होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? Trunk. So they have a longer lifespan than herbs and shrubs, often living for many years. So अब सबसे ज़्यादा lifespan किसका होता है? Trees का, and ये बहुत सालों तक जीते हैं. So trees provide shade, ऑक्सीजन एंड हैबिटेट्स फॉर वेरियस एनिमल्स. और अब ट्रीज क्या कर रहे होते हैं? ये हम लोगों को शेड यानी कि छाया, ऑक्सीजन और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को कुछ कुछ हैबिटेट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं. नाउ वी हैव एग्जांपल्स. सो एग्जांपल्स ऑफ ट्रीज वी हैव ओक, pine, maple and mango. They are used for timber, fruits and various other resources. So अब हमारे पास जो trees है, for example oak, pine and maple, इन सबको हम लोग examples of trees में consider कर सकते हैं. And then इन सब trees को हम लोग timber यानी कि wood के लिए, fruits के लिए and और भी other purposes के लिए use करते हैं. Now, next we have climbers and creepers, are special types of plants that are different from herbs, shrubs and trees. So now बच्चों, अब हम लोगों ने main herbs, shrubs and trees तो पढ़ लिए, but इनके बीच में भी हमारे पास कुछ होते हैं and ये कुछ special kinds of plants होते हैं. ये कौन है? Climbers and creepers. So climbers and creepers, they have weak stems that cannot stand upright on their own. We will now discuss climber and creeper plants in some details. So बच्चों, अब climber and creepers कैसे plant होते हैं? इनकी स्टेम बहुत ही ज्यादा वीक होती है जिसकी वजह से ये लोग सीधे नहीं खड़े हो पाते अपने आप से. एंड नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट देम इन डिटेल. So let's start with climbers. Climber plants are a type of plant that cannot stand upright on their own due to weak stems. Instead, they climb up other structures or plants for support. So बच्चों, हम लोगों ने अभी अभी एक चीज पढ़ी कि क्लाइंबर कैसे प्लांट्स होते हैं जिनकी बहुत ज्यादा वीक स्टेम्स होती है एंड वो खुद से अपने आप से स्ट्रेट नहीं खड़े हो सकते, बट फिर वो क्या करते हैं? वो लोग अपने साथ वाले प्लांट्स का या फिर किसी दूसरी चीज का सपोर्ट लेकर सीधे खड़े होते हैं. सो हेयर यू कैन सी दिस मनी प्लांट एंड ये मनी प्लांट क्या कर रहा है? ये अपने साथ जो है वो किसी दूसरी चीज का, वॉल का सपोर्ट लेकर जो है वो ये खड़ा हो पा रहा है.
Now, some climbers have unique structures called tendrils that wrap around the objects for support. और बच्चों कुछ कुछ क्लाइंबर्स के पास क्या होते हैं, एक स्पेशल फीचर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेंड्रिल। और ये टेंड्रिल्स क्या करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट साथ में प्रेजेंट होता है ये उसके अराउंड अपने आप को घुमा लेते हैं, अपने आप को रैप कर लेते हैं। सो अदर्स हैव टाइनी हुक्स और थॉर्न ग्रिप। और दूसरे क्लाइंबर्स के पास क्या हो सकता है, उनके पास कुछ छोटे छोटे हुक्स हो सकते हैं या फिर थॉर्न ग्रिप्स हो सकती है। So now we have climber plants often grow in forests, jungles or gardens, climb big trees, walls or fences. So बच्चों अब हमारे पास climber plants जो है वो बहुत जगह देखने को मिलते हैं। ये हमको फॉरेस्ट में भी देखने को मिल सकते हैं, जंगल्स में देखने को मिल सकते हैं, गार्डन्स में देखने को मिल सकते हैं। बट हर जगह ये लोग क्या कर रहे होते हैं, ये लोग स्ट्रेट खड़े हो पाते हैं with the support only. So examples of climbers plants include pea plants, bitter gourds, sweet gourds, bottle gourds, glory lilies, ivy grapes and certain roses. So हमारे पास climber plants के example है, पी प्लांट है हमारे पास, बिटर गार्ड्स है, आईवी है, ग्रेप्स है एंड कुछ कुछ रोजेस भी है। So now students, next we have creepers. So creepers plants are similar to climber plants but they grow along the ground instead of upward. So बच्चों creepers जो है वो climbers की तरह ही होते हैं, but the only difference is कि climbers जो है वो ऊपर की तरफ straight क्लाइम करते हैं किसी का सपोर्ट लेकर, बट क्रीपर्स जो है वो ग्राउंड के लॉन्ग ही ग्रो होते रहते हैं। So they have long trailing stems that spread out horizontally along the soil, they often rooting along these stems. So बच्चों अब क्रीपर्स की जो रूट्स होती है वो क्या करती है, वो हमारे स्टेम्स के अराउंड ही स्प्रेड होती रहती है एंड इस तरह से वो सॉइल के अंदर सीधा 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 ग्रो करती जाती है। सो ना बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि क्यों क्रीपर्स जो है वो क्लाइंबर्स की तरह स्ट्रेट नहीं खड़े हो पाते, क्योंकि क्रीपर्स के पास हेवी फ्रूट्स होते हैं। सो आप लोग कोई भी अगर क्रीपर का एग्जाम्पल देखोगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर क्रीपर प्लांट में है स्वीट पोटैटो एंड वी ऑल्सो हैव वाटरमेलन। सो ऑल दीज प्लांट्स, इन सब के फ्रूट्स जो है वो बहुत ज्यादा हैवी है, जिसकी वजह से ये लोग सीधे नहीं खड़े हो पाते। So now, creeper plants are commonly found in gardens where they can serve as ground cover or ornamental features. So अब जो ये creeper plants है ये mainly हम लोगों को gardens में देखने को मिलते हैं and gardens के अंदर ये लोग क्या करते हैं, ground को पूरी तरीके से cover कर रहे होते हैं। Also इन लोगों को हम लोग ornamental features की तरह भी use करते हैं। So some creeper plants produce beautiful flowers that bloom close to the ground. Example of creeper plants include sweet potatoes, vines, certain types of jasmine. So बच्चों अब जो ये creeper plants होते हैं इनके flowers भी बहुत beautiful होते हैं and example है हमारे पास jasmine, हमारे पास wine है and also sweet potato. So now students, next we have pick up more. So Aprajita is a plant that grows like a vine and climbs up things. People use it to make places look pretty because it has beautiful flowers, it grows ample sunlight and well-drained soil. So now बच्चों अब हमारे पास एक प्लांट है जिसका नाम क्या है, अपराजिता। एंड ये अपराजिता जो है वो बिल्कुल वाइन की तरह ग्रो होता है और ऑल्सो ये ऊपर की तरफ क्लाइंब करता है। बिसाइड्स दैट इसके फ्लावर्स बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होते हैं जिसकी वजह से लोग इनके फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एंड ऑल्सो ये जो अपराजिता फ्लावर है ये बहुत ज्यादा सनलाइट में ग्रो करता है और जहां पर हमारे पास वेल ड्रेन सॉइल होती है ये वहीं पे ग्रो करता है। Now let's see the differences between climbers and creepers. So here we have characteristics and then here we have climber plant and creeper plant. So let's see the first characteristic, we have growth direction. So अब climber plants जो है वो कहाँ grow करते हैं, वो vertically upward grow करते हैं, right? And if we are going to learn about the creeper plants, so creeper plants कहाँ grow करते हैं, वो horizontally ground की तरफ grow करते हैं। देन बच्चों नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, स्टेम स्ट्रेंथ। सो क्लाइंबर्स की जो स्टेम होती है वो बहुत ज्यादा वीक होती है एंड ऑल्सो जो हमारे पास क्रीपर्स है उनकी स्टेम्स भी कैसी होती है, ट्रेलिंग स्टेम्स होती है जो कि ग्राउंड के ऊपर ही स्प्रेडेड रहती है, फैली हुई रहती है। देन वी हैव सपोर्ट मैकेनिज्म। सो क्लाइंबर्स क्या करते हैं, वो अपने टेंड्रिल्स को यूज करते हैं एंड हम लोगों ने पढ़ा था कि टेंड्रिल्स क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स के अराउंड अपने आप को रैप कर लेते हैं। एंड देन वी हैव हुक्स
also and we have thorns also, जिसकी वजह से ये लोग क्या करते हैं, climb up करते जाते हैं. Then we have creeper plants. So creeper plants तो climb करते ही नहीं हैं, ये लोग ground के along ही grow होते हैं. Then next we have typical habitat. So climber plants हमको कहाँ मिलते हैं, ये हमको forest में मिलते हैं, gardens में मिलते हैं and jungles में मिलते हैं. And then we have creepers, और creepers हम लोगों ने अभी पढ़ा था, ये हमको mainly gardens में ही मिलते हैं. Then we have common examples of climber plant, and climber plant में हमारे पास आते हैं ivy, grapes and certain roses. But then in creepers we have sweet potato, we have vines, right? So बच्चों ये creepers और climbers में difference बहुत ज़्यादा important है. So I hope आप सब लोग creepers, climbers, shrubs, herbs, trees इन सब को अच्छे से समझ चुके होंगे. So now we are moving towards the root system. So plants have special parts called roots that help them anchor to the ground and take in water and nutrients. So बच्चों plants के पास कुछ special parts होते हैं and इस special part को हम लोग क्या बोलते हैं, root. So now root क्या करती है, root plants को ground के साथ एकदम fix करके रखती है. So अब इसके अलावा roots जो है वो plant के लिए water को भी absorb करती है and nutrients को भी absorb करती है. So there are two main types of roots, that is taproot and fibrous root. So हम लोग दो main तरीके की roots को पढ़ने वाले हैं. First of all we have taproot. So a taproot system consists of single primary root known as taproot which grows vertically downward into the soil. So now बच्चों taproot में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, हमको एक main root देखने को मिलती है. और ये main root कैसी है, ये काफी ज्यादा thick होती है जो कि ground के अंदर vertically grow कर रही होती है. और besides that हमको इस रूट के अंदर से कुछ कुछ छोटे छोटे से इस तरीके की ब्रांचेस जो है वो निकलती हुई दिखती है. सो टैप रूट सिस्टम में देयर इज अ सिंगल रूट दैट इज कॉल्ड प्राइमरी रूट एंड दैट grows deep into the soil. So हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये रहा हमारे पास एक सिंगल रूट जो कि ग्राउंड के अंदर बहुत डीपली जा रही है एंड ग्रो कर रही है. Then later smaller roots called lateral roots branch out from this primary root. और अब इस प्राइमरी रूट से हमको कुछ कुछ ब्रांचेस निकलती हुई दिख रही है और इन्हीं ब्रांचेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल रूट्स. नाउ मैंगो, नीम, पाइन, शीशम, पी, कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीटरूट, ये सब किसके एग्जाम्पल्स है, टैप रूट के. Now, tap roots help plants to go deep into the soil to find water and nutrients. So अब tap root करती क्या है, tap root plants को soil के अंदर deep जाने देती है जिसकी वजह से इसकी जो roots है वो water को find out करती है and nutrients को भी find out करती है. So they also provide strong support to the plant. And besides that, हमारे पास जो ये tap root है ये बहुत ज़्यादा support करती है हमारे plant को, ये उसको एक जगह strong जो है वो खड़े रहने पर मदद करती है. Now next we have fibrous root. So in a fibrous root system, many thin roots spread out in all directions below the soil surface. So बच्चों fibrous root के अंदर आप लोग क्या देख सकते हो कि बहुत सारी roots जो है वो हमारे soil के around different directions में spreaded out है. So इस तरह से आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो roots है वो हर direction में फैली हुई है. So these roots are thin and almost equal in size. And ये सारी roots जो है वो एक दूसरे के equal होती है and same साइज की होती है. So the grass, maize, wheat, onion, sugarcane and rice are fibrous root. So बच्चों हमारी grass होती है, maize होते हैं, wheat होते हैं, ये सब किसके example है, fibrous root के. And if you pull up a clump of roots, you will see many thin roots coming out from a base. और बच्चों अगर कभी भी आप किसी fibrous root वाले plant को soil से बाहर निकालोगे तो आपको दिखेगा कि बहुत सारी roots जो है वो एक साथ फैली हुई है. So the fibrous roots absorb water and nutrients from the soil. They also help in preventing soil erosion by holding the soil together. So now बच्चों हम सबको पता है roots का काम क्या है कि ये water and nutrients को absorb करती है. So similarly fibrous roots भी क्या कर रही है, water and minerals को absorb कर रही है and besides that ये roots जो है वो soil erosion को भी prevent कर रही है. And soil erosion क्या होता है, जब heavy rain, heavy floods के साथ हमारी soil wash off हो जाती है जिसकी वजह से fertile soil जो है वो हमको नहीं मिल पाती. So ये soil erosion होता है. But हमारी ये roots जो है वो soil erosion को prevent करवाती है, यानी कि floods के साथ, heavy rains के साथ ये fertile soil layer को wash off नहीं होने देती.
नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट वी हैव हैंड ऑन लर्निंग. सो हमारे पास यहाँ पर एम क्या है? टू ऑब्जर्व हाउ रूट्स एंकर द ग्रास इन द सॉइल. सो हम लोग यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि किस तरह से रूट्स जो है वो हमारी ग्रास को सॉइल के साथ एकदम फिक्स करके रखती है. सो इसके लिए हमको मटेरियल्स क्या क्या चाहिए? हमको ग्रास पैच चाहिए या फिर लॉन एरिया चाहिए. उसके साथ हमको गार्डन ट्रॉवल चाहिए या फिर स्मॉल शॉवल चाहिए. सो नाउ लेट्स सी द प्रोसीजर. सो सबसे पहले हम लोग चूज करेंगे एक पैच ऑफ ग्रास को हमारे लॉन के अंदर या फिर किसी भी नियर बाय एरिया के अंदर जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. देन हमको ये मेक श्योर करना है कि सॉइल जो है वो मॉइस्ट होनी चाहिए बट वाटर लॉग नहीं होनी चाहिए, यानी कि इसके अंदर भर भर के पानी नहीं होना चाहिए. जेंटली ग्रैब अ हैंडफुल ऑफ ग्रास नियर इट्स फेस. और अब हम क्या करेंगे? हम लोग बहुत जेंटली एक ग्रास का जो गुच्छा है वो हमारी सॉइल से बाहर निकालेंगे. सो अटेम्प्ट टू पुल द ग्रास आउट ऑफ द ग्राउंड विद अ स्टेडी जेंटल फोर्स. एंड इस तरह से हम लोग तो हल्की सी फोर्स लगाकर ग्रास को सॉइल से बाहर निकालेंगे. देन हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और नोट करेंगे रेजिस्टेंस को जो कि हम लोगों को मिल रही होती है जब हम ग्रास को बाहर निकाल रहे होते हैं. सो इफ नीडेड हम लोग यूज कर सकते हैं गार्डन ट्रॉवल को, जिससे हम लोग डिग कर सकते हैं इनसाइड द सॉइल एंड बेस ऑफ ग्रास के अंदर हम लोग जा सकते हैं. नाउ अब आपको यहाँ पर अटेंशन देनी है कि डेप्थ क्या है उन ग्रास रूट्स की एंड ये रूट्स जो है वो कितना ज्यादा स्प्रेड है हमारे सॉइल के अंदर. इसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं या फिर ड्राइंग्स बनानी है जिससे आप लोग अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट कर पाओ. नाउ स्टूडेंट्स हियर वी हैव सेफ्टी प्रिकॉशंस. अब हमको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है ये एक्टिविटी करते हुए? हमको एकदम जेंटल रहना है जब हम ग्रास को पुल आउट करेंगे. सो इस टाइम पर हमको जेंटल क्यों रहना है? ताकि हम हमारे रिमेनिंग प्लांट को डैमेज ना पहुंचा पाए, उसको खराब ना करे. नाउ सेकेंड प्रिकॉशन हमारे पास क्या है? हम लोग जो शार्प ऑब्जेक्ट्स को अगर यूज करने वाले हैं सो हम लोगों को उनको ध्यान से यूज करना है कि कहीं वो कोई इंजरी ना कॉज कर दे. Now let's see the observation. So we observe that grass roots hold tight in the soil. So आप लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व करी होगी कि जब आप लोग ग्रास को बाहर खींच रहे होगे तो एक रेजिस्टेंस फील हुआ होगा. एंड इस रेजिस्टेंस की वजह से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारी ग्रास रूट्स जो है वो बहुत फर्मली, बहुत अच्छे से सॉइल के अंदर इंटैक्ट है. And this helps plants remain stable in wind or rain and absorb water and nutrients for growth. And इसी की वजह से हमारा प्लांट जो है वो बहुत अच्छे से हमारे सॉइल के अंदर इंटैक्ट रहता है, सॉइल के अंदर से वाटर को एब्जॉर्ब करता है एंड न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब करता है. नाउ लेट्स सी द कंक्लूजन. सो रूट जो है वो क्या करती है? हमारे पूरे प्लांट को सॉइल के साथ बाइंड कर कर रखती है एंड इसी की वजह से हमारा पूरा प्लांट जो है वो ग्राउंड के अंदर एक ही डायरेक्शन में वो स्टिक रहता है. So now students we are going to start with the second activity and here we have the aim. हमको observe करना है कि कैसे roots जो है वो absorb करती है water को by using a simple experiment. So इसके लिए what materials we need? We need carrot, beaker, transparent glass, water, blue food coloring or any water soluble coloring agent. So now बच्चों प्रोसीजर क्या है हम लोगों के पास कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फिल करेंगे बीकर को या फिर ग्लास को वाटर के साथ एंड सेकेंड हम लोग ऐड करेंगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लू फूड कलरिंग टू दी वाटर एंड देन हम इस फूड कलरिंग को वाटर के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करने वाले हैं. आफ्टर दैट हम लोग हमारी कैरेट को रखेंगे इसी कलर्ड वाटर के अंदर. अब हम इस कलर्ड वाटर के अंदर हमारी कैरेट को कुछ आवर्स के लिए या फिर पूरी रात के लिए छोड़ सकते हैं. नाउ अब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे चेंजेस को वाटर के अंदर एंड कैरेट कलर के अंदर क्या क्या चेंजेस आए. सो नाउ 6 हम लोग नोट करेंगे किसी भी डिफरेंस को जो कि हमको दिख रहा है कलर्स के अंदर वाटर के या फिर हमको कैरेट जो है उसके अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं बिफोर एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंट. सो नाउ आवर ऑब्जर्वेशन विल बी कैरेट जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे कलर्ड वाटर को थ्रू इट्स रूट. सो अब कैरेट क्या करने वाले हैं? वो कलर्ड पानी को एब्जॉर्ब करने वाले हैं उनकी रूट्स के थ्रू एंड वाटर चेंज्ड कलर एज द कैरेट एब्जॉर्ब द ब्लू कलरिंग एजेंट. सो नाउ अब इसके बाद क्या होने वाला है कि वाटर इसने क्या करा है? इसने चेंज करा है कलर को क्योंकि अब इसका कलर जो है वो कहाँ चला गया है? कैरेट के अंदर. सो दैट इज व्हाई हमको वाटर के कलर के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे और कैरेट के कलर
के अंदर। देन वी हैव कंक्लूजन। सो यहाँ से हमको ये पता चलता है कि रूट्स क्या करेगी, रूट्स एब्जॉर्ब करती है वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को सॉइल के अंदर से, एंड इसी वजह से हमारा प्लांट जो है वो ग्रो कर सकता है एंड सर्वाइव कर सकता है। सो स्टूडेंट्स, this completes our topics, and in today's class we are going to do only these topics. So now the next topics we are going to continue in the next class. So till then I want you all to revise all these topics, and now I'll meet you in the next class. Till then, take care. Bye bye.